What if I told you that light can also behave like a hammer, striking electrons out of surface? Yes, interesting now? Hi, I am Mehru Khan, and today I will take you to the very fascinating topic that is photoelectric effect. So once upon a time, scientists thought that light was just a wave, but then came with an experiment. Around 1887, Hertz, a very well-known scientist, he saw the effect of photoelectric effect, which is whenever the light is incident on the metal surface, electrons ejects out of the surface. And then, after some years, in 1905, Albert Einstein, you people know. So yes, Albert Einstein, he observed that effect and he made the experimental setup, and then he came out with a very interesting results, and he used the concept of light quanta. Yes, he proposed that light also behaves like a particle. So by using that experiment, we will see that light also behaves like a particle, and which is photons. And later we will see how this experimental goes and what are the observations and results of it. Okay, and also for this experiment, Albert Einstein got the Nobel Prize in 1921. So let's dive. So let's start with the photoelectric effect. So here we have a metal surface, like it can be potassium or rubidium. So as soon as the light falls with certain frequency, it falls on the metal surface, and the electrons surrounded by the atoms, it gets ejected from the metal, and it contains the velocity also, with some sort of velocity with kinetic energy, it ejects out. So these metals are used because they have a very low work function. Work function is basically the energy needed to release the electrons from the atoms. So even visible light can be cause emission. Okay, so light behaves as tiny particles called photons. These light are a packet of photons, and each photon has an energy of E is equals to h nu. And this h nu is basically, if h nu is greater than the work function, if this h nu is greater than the work function of the metal, then the electrons is freed with maximum kinetic energy. Yes, and this k max will be equal to h nu minus work function. So basically light is made up of photons, and if one photon gives energy to one electron, then the electron escapes from the metal surface, and this is complete photoelectric effect. Now in 1905, this concept was proposed by Hertz, scientist Hertz, in 1887. Okay, then after this, in 1905 albert einstein albert Einstein, he proposed the concept of these photons. By using these photons or quanta, he used this and he made the experimental setup, which is he took a metal surface and used as cathode and anode, which is made up of atoms, and connected it through a battery, negative terminal and a positive terminal. It is basically here positive charge, and here it is just a sort of experimental setup. This part is open for the, this is also known as open window, and this is for the incident of light. So here this is the photosensitive plate, which is basically metal. So when Albert Einstein allowed the photons or energy, basically photons, light, onto the metal surface on this metal, then the electrons ejected with the kinetic energy with some velocity. यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन लाइट को इंसिडेंट कराया हमने मेटल सरफेस पे, तो जैसे ही उसने स्ट्राइक किया वैसे ही फौरन जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें से निकल गए विद सम काइनेटिक एनर्जी, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना चाह रहे थे. ये इलेक्ट्रॉन्स कब निकले? जब इनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस एटम में
पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो उसे ब्रेक डाउन करता है। इतनी एनर्जी हमें चाहिए, तो इस फोटोन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज़ करा सके। और उस बेसिकली फ्रीक्वेंसी को, उस एनर्जी को, क्योंकि हमें पता है कि हम एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखते हैं, तो इतनी इसके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि इतनी फ्रीक्वेंसी हो, इतनी एनर्जी हो कि इस इलेक्ट्रॉन को वो इजेक्ट करा सके। तो इसी को हम कहते हैं कि वर्क फंक्शन है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। तो हमारी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी विल बी, जो हमारी इसकी टोटल एनर्जी होगी वो किस में खर्च होगी? पहले तो हमारे पास हो जाएगा वर्क फंक्शन प्लस, पहले तो हमारे पास वर्क फंक्शन यूज़ हो गया और जो रिमेनिंग एनर्जी बची थी वो हो गया काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। और इस इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज इजेक्टेड थ्रू द फोटोन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, सो इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। सो नाउ यहाँ पर हमारी टोटल एनर्जी थी जिसको हम एच न्यू लिख रहे हैं, जो हमारी फोटोन की एनर्जी थी, और ये हमारा वर्क फंक्शन है प्लस हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमें मालूम है कि ½ mv² होता है। इसको हम एच न्यू प्राइम कर सकते हैं, और ये एच न्यू प्राइम जो है हमारा, ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी हो गई जितनी हमें चाहिए, प्लस हमारे पास ½ mv² है। तो हमारा जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी बनता है वो हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है कि काइनेटिक जो एनर्जी होता है वो हमें काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। नंबर 1 पॉइंट, जितना काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो रहा है वो हमें ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी थी। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी तेज़ी से, उतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाएगा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जितनी इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हमें निकलेंगे वो हमें बताएगा कि कितनी इंटेंसिटी थी। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये बनता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये हमारा 2 कंक्लूजन इससे निकलता है। नाउ वी विल सी द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेट्स सी कि जो हमारे पास फोटोन है हमारा वो 100 जूल का है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जस्ट अ नंबर 100 जूल। और इसका जो वर्क फंक्शन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए वर्क फंक्शन, वो हमारा 60 जूल है। तो हमारा जो हमें पता है फॉर्मूला, वो हमारा होता है E इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा जो E है वो यहाँ पर 100 जूल हो जाएगा, और जो हमारा वर्क फंक्शन है यहाँ पे 60 जूल अगर हो रहा है, तो हमें जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होगा, वो कितना हो जाएगा? 40 जूल हो जाएगा, राइट। ये हमारा एमिटर है, यहाँ पर हमारा कलेक्टर है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, वो काइनेटिक एनर्जी से मूव करने लगता है इलेक्ट्रॉन। फिर हम सेकेंड केस लेते हैं कि जैसे ही कि हमने इंटेंसिटी को चेंज किया, इंटेंसिटी मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रखी है 100 जूल, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को हमने बढ़ा दिया है। इंटेंसिटी हमने बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए, तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ मिलता है, फ्रीक्वेंसी को हमने सेम रखा है और इंटेंसिटी को हम चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मतलब करंट हमें ज़्यादा मिलेगा। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा करंट वर्सेस इंटेंसिटी का, वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यह हमारा फर्स्ट ग्राफ है। देन सेकेंड ग्राफ विल कम, और इस ऑब्जर्वेशन में हम सेम कंडीशन ले रहे हैं कि 100 जूल हमने फोटॉन्स दिए, 60 जूल उसका वर्क फंक्शन है, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं वो 40 जूल के हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी 40 जूल है। इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर पॉजिटिव को, यहाँ पर क्योंकि हमारा कलेक्टर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, अब हम इस पॉजिटिव टर्मिनल को इंक्रीज़ कर रहे हैं। हमने पॉजिटिव टर्मिनल इंक्रीज़ किया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये जल्दी से जल्दी जाने के लिए कोशिश करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो ये जल्दी से जल्दी पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए इंक्रीज़ करेगा।
तो कुछ ना कुछ उसका फोटो करंट होगा जिसे हम VC से डिनोट करते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ फोटो करंट था। एज सुन एज वी इंक्रीज द करंट पॉजिटिव टर्मिनल, देन यहाँ पर जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है जल्दी जल्दी भाग कर जाएंगे और यहाँ पर जो है इनकी एनर्जी जो है, इनका जो करंट है ये इंक्रीज होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि ये जो है सैचुरेट हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते सैचुरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम फिर इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही मूव करने लगेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और हम बढ़ाते जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल को, और उसके बाद यहाँ पर हमारा इंटेंसिटी जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा सैचुरेशन करंट भी बढ़ रहा है। फिर हमारा थर्ड कंडीशन ये आता है कि अगर हम इस वाले पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव कर दें, अगर हम नेगेटिव करते हैं तो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, एंड दीज बोथ विल बी नेगेटिव एंड इट विल गेट रिपेल्ड। अब रिपेल्ड होंगे तो उसके बाद हमें नेगेटिव की तरफ डिक्रीज होने लगेगा करंट, क्योंकि ये रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो सर्किट में हमारे करंट जो है डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज होगा तो ये इट विल डिक्रीज। और सेकेंड कंडीशन हमारा ये है कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो जो इंटेंसिटी ज़्यादा इंटेंसिटी का था वो भी डिक्रीज होगा, और एक पॉइंट आएगा कि वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, वहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो these all are the observations, some of the observations and some of the graphs related to photoelectric effect. Hope you enjoy it.